अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी मॉर्निंग तो आज बहुत अच्छी हुई है। द डिसीजन दैट वी टुक ऑफ टेकिंग डूइंग दर्शन in the night itself was actually a very good decision. Entered the temple at around the last entry is 8:30 p.m. they allow you, so we reached around 8:15. So the rush was also not as much as it is usually there. What should I tell about the temple and the idol? There are no words to describe it. The entire temple and the surrounding area is so beautifully designed, and the temple is marvelous. There are intricately carved designs inside the temple of the lotus. Then there is Hanuman, Ganpati on all the pillars. And the nighttime view was just enchanting. And the idol is like, when you stand in front of that idol, you feel like, you should we feel like we should just keep looking at it. It was so beautiful. Like they were telling us to move fast, but I went in the second line, behind, and then I stood there for 5 minutes, just looking at the idol. Usually I don't do that because I'm not a very religious person. First, when you enter the temple, you have to keep your shoes and everything. There is a locker system for shoes. There is another locker system for all your belongings. The phone is not allowed inside, and that what should I say, whether it's a fortunate thing or an unfortunate thing, because it's fortunate because you can give your entire attention to the temple because you are in that moment when you look at it. But unfortunate I felt because I really wanted to show all of you how beautiful the temple is, but I did not have the phone. And the every corner of that campus is so beautiful, so picturesque, that you feel that you should take a pic here, you should take a pic here. So I was really missing my phone, but at the same time I just enjoyed and click pictures in my memory to always remember that place. There are small temples all around made for Valmiki Rishi, Vasishtha Rishi, and then there is another Ram Parivar temple inside. Then there are small water bodies, and then there are trees, look like Ashok Vatika. And when you go up little bit up, there is a Shiv Mandir, and then there is a huge Jatayuka statue that they have made. And everywhere there are places to sit, or you can sit on the people were sitting on the floor also. We also sat there for some time to just absorb the energy of that place. It was so beautiful. I really liked it. Now today we charged our car at the same place where we charged yesterday. We charged around 90%, and now we are going to the Sonoli border there, and then I'll share you information about all the formalities that we have to do if we want to take our car there. And then we will have the night stay at Lumbini. But I just want to tell all my viewers that you should at least go once to have darshan at this temple. Namami Shamishan Nirvana Rupam Vibhum Vyapakam Brahma Veda Swarupam Nijam Nirgunam Nirvikalpam. ये जो शिव स्तोत्रम आप सुन रहे हो ना, ये हमारा फेवरेट है। हम लोग जब नैनीताल गए थे ना, तो हमारा ड्राइवर जैसे ही गाड़ी शुरू करता था ना, तो सबसे पहले ये शिव स्तोत्रम ही लगाता था। तब से हमको बहुत पसंद आया ये। और दूसरी एक बात ये है कि वो जो ड्राइवर था ना, उसने अपने अमन नाम था उसका, उसने अपनी गाड़ी में है ना, ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील के साइड में ऊपर एक छोटा सी घंटी लगाई थी।
जितनी बार भी हम लोग मंदिर पास होते थे ना, तो वो घंटी बजाता था, तो वो बात मुझे इतना याद रह गई है, बहुत अच्छी लगी थी वो बात मुझे। मनोभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम्। अभी मैं आपको सब ये जो अयोध्या के बारे में बता रही थी, तभी सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मुझे बतानी थी वो मैं भूल गई बताना, तो मैं वापस अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ। वहाँ पे जब आप अंदर मतलब दर्शन के लिए जैसे जाओगे ना, तो साथ में जो सारे लोग होते हैं ना, वो ऐसे ज़ोर ज़ोर से चैंट करते हैं नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो उससे ना मतलब एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, और मतलब सबको ऐसे मन में डिवोशन जागता है। लाइक एक लड़की थी, छोटी सी लड़की थी, और वो ऐसे बोल रही थी कि एक ही नारा, एक ही नाम। फिर सारे लोग साथ में बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। तो उससे इतना अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा था। और वो लड़की जो थी ना, छोटी सी, उसकी इतनी छोटी सी उम्र में उसके आवाज़ में इतना डिवोशन था ना, कि वो जब बोलती थी ना, तो हमको भी ऐसे बोलने का मन होता था कि जय श्री राम, जय श्री राम। जैसे कि मैंने बोला ये छोटी, और जैसे दूसरे आज मंदिर में मैंने एक और चीज़ देखी कि एक लड़की थी जो अपने लाइक उसकी माँ थी, वो साथ में दोनों जन थे, और मदर एकदम ओल्ड एज की थी। और फिर जैसे ही वो लोग एंटर हुए ना, तो बेटी ने और माँ ने साथ में बोला कि देखा, ऐसा लग रहा है ना कि स्वर्ग में आ गए। तो मतलब उनके फेस पे जो खुशी मैंने देखी ना, वो देख के मैं भी बहुत खुश हो गई। तो वो ही बताना था आपको। हेलो गाइस, क्योंकि अब हम नेपाल जा रहे हैं तो उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, और मतलब बहुत छोटा सा देश है। अराउंड 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। मतलब आप अगर इंडिया के स्टेट से कंपेयर करेंगे तो महाराष्ट्र भी 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर है, मतलब उससे 1/3 ऑलमोस्ट जितना है नेपाल। और ज़्यादातर वो पहाड़ों में ही बसता है, और बहुत कम प्लेन्स हैं वहाँ पे। और वो बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, तिब्बत से, चाइना से। और ये जो पूरा नेपाल देश है ना, वो 7 प्रोविंसेस में डिवाइडेड है, जिसको वो लोग प्रदेश बोलते हैं। कोशी, मधेश, बागमती, गंडकी, लुम्बिनी, कर्नाली और सुदूर पश्चिम प्रदेश। ये जो मधेश प्रदेश है ना, इसमें मिथिला है, जो सीता का बर्थ प्लेस है। और यहाँ भाषा जो बोली जाती है वो नेपाली भाषा है, और यहाँ की जो करेंसी है वो नेपाली रुपी है। और अगर इंडिया से कंपेयर करें तो 1 इंडियन रुपीज़ इक्वल टू 1.6 नेपाली रुपी। Hello friends, now we are on our way to Sonoli border. It is around 60-65 kilometers from here, and it was a very good drive, and we are enjoying our trip here. भेटिनै छाडे हजुर बर्पी पाल्छाया, उहिले त लेखिन्थ्यो रे चिठीमा माया, भेटिनै छाडे हजुर बर्पी पाल्छाया। हेलो गाइस, जैसे ही आप ये ट्रक की लंबी क्यू देखोगे ना, तो आप समझ जाना कि अभी आप बॉर्डर के नज़दीक आ गए हो। और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू गेट स्टक इन दिस क्यू। आप मतलब यहाँ पे हमको एक शॉपकीपर ने बोला कि आप यहाँ साइड से निकल जाओ, और बाद में आप सामने तरफ से, मतलब आप उल्टी तरफ से जाओगे तो भी चलेगा, यहाँ पे अलाउड है। तो जैसे हम लोग ने सामने ले लिया यहाँ से, और ये उल्टी तरफ से ले लिया, ताकि मीन्स हम ये पूरा रास्ता मतलब स्टक ना हो जाए और आगे जाएं। तो अभी ऑलमोस्ट हम लोग बॉर्डर के नज़दीक आ गए हैं।
Hello guys. After traveling almost more than 1900 kilometers, we are here at Nepal border, entering, feeling excited, and hopefully ये ट्रैफिक जल्द से जल्द क्लियर हो जाए. अभी हम लोग 5 मिनट से ऑलमोस्ट यहाँ पे ऑलमोस्ट स्टक हुए हैं ट्रैफिक में. तो अभी एक एजेंट आया, उसने बोला कि वो हमारा गाड़ी थोड़ा साइड में से जल्दी निकलवा देगा और वो फॉर्मेलिटीज़ करके बंसार वरना आरटीओ वो सब वो करके देगा. एंड ही हैज़ टोल्ड दैट ही विल चार्ज अराउंड 200 रुपीज़ हिज सर्विस चार्ज. सो वी हैव टोल्ड हिम like yes, and we are going to avail his services for the same. ये जो बॉर्डर एरिया है ना नेपाल और मतलब यूपी में, मतलब नेपाल और इंडिया के बीच में, यहाँ पे जो नेपाली लोग जो बॉर्डर में रहते हैं ना, वो लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं. मतलब यहाँ पे सब होलसेल वगैरह भी मिलता है. इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम से लेके साड़ी वगैरह, कपड़ा, घर का सामान, वो सब सारा ये लोग यहाँ पे आते थे. लेकिन अभी जो नया प्राइम मिनिस्टर हुआ है ना नेपाल का, उसने एक अभी कस्टम ड्यूटी लगाया है टू इंश्योर दैट दे बाय फ्रॉम देयर ओन कंट्री इटसेल्फ. ये सनौली बॉर्डर का गेट है, मतलब ये गेट के उस साइड नेपाल है. जैसे ही आपने बॉर्डर क्रॉस किया, आपको यहाँ पे रुकाते हैं गाड़ी साइड में, और फिर यहाँ से आपका आधार कार्ड और मतलब सारा लगेज निकाल के आपको यहाँ पे चेक करवाना पड़ता है. अभी ये बॉर्डर से हम लोग ये साइड आ गए हैं. यहाँ पे गाड़ी पार्क किया है, यहाँ पे ऑफिस है. अभी आईडी कार्ड वो लोग सब देखेंगे और वो भंसार करवा के देंगे हमको, और आरटीओ भी. और 200 रुपीज़ सर्विस चार्ज काफ़ी नॉमिनल है. ये जो डॉक्यूमेंट आप देख रहे हो वो भंसार है. तो आप अपना प्राइवेट व्हीकल लेके जब आते हो ना नेपाल के अंदर इंडिया से, तो आपको ये भंसार बनवाना पड़ता है. ये बॉर्डर पे, सनौली बॉर्डर पे, और एक आरटीओ का भी रिसीट है. तो ये नेपाली रुपी में है सारा. तो ये 4200, मतलब हम लोग ने 7 डेज़ का बनवाया है. तो 7 डेज़ का पर डे 600 नेपाली रुपी के हिसाब से है. तो उसका ये 4200 नेपाली रुपी आपको कुछ लगता है. और आरटीओ का पर डे 300 है. तो इसका आप देखेंगे कि ये कागज़ जो है वो आरटीओ का है, और इसका 2100, और ये स्टैम्प भी लगवाना बहुत ज़रूरी है. वन थिंग इज़, वो लोग पूरा इंडियन रुपी सब करेंसी वो लोग एक्सेप्ट करते हैं. लाइक 500 रुपी नोट, 100 रुपी नोट, एवरी बॉर्डर एरिया में तो पूरा एक्सेप्ट होता है. और यहाँ पे भी हम लोग जहाँ खाना खाया, फिर होटल में, एवरीवेयर दे आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपीज़. बट टू बी सेफ आप थोड़ा सा आपके साथ करेंसी रख सकते हैं, या तो फिर कार्ड से आप पे कर सकते हैं. लेकिन वो वहाँ कार्ड से पे करेंगे तो कुछ वो लोग बैंक दे चार्ज यू अराउंड 2.5% समथिंग. सो दिस यू विल हैव टू डू व्हेन यू एंटर नेपाल इन योर ओन प्राइवेट व्हीकल. और ये हम लोग ने ये एन सेल का सिम लिया है, और यहाँ पे आपको नंबर, जो नेपाली नंबर है वो यहाँ पे प्रिंटेड होता है. तो और इसमें है ना आपको 400 इंडियन रुपीज़ में 8 डेज़ के लिए अनलिमिटेड डेटा मिलता है. तो और इसका कवरेज काफ़ी अच्छा है. तो दिस you can buy. Another important thing that I want to tell you is that there is no eSIM facility. तो अगर आपके इसमें एक ही स्लॉट है आपके फ़ोन में, तो देन यू हैव टू रिमूव योर ओल्ड सिम कार्ड एंड देन इंसर्ट दिस न्यू वन. नाउ वी हैव फाइनली अराइव्ड इन नेपाल एंड वी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स लुम्बिनी. सो K Square explorers are in Nepal finally.
गाइस अभी हम लोग ने लुम्बिनी एंटर कर लिया है, मतलब बॉर्डर क्रॉस करके। और अभी हमने जैसे ही हमको फर्स्ट चार्जर दिखा तो हम लोग ने अपना गाड़ी इधर चार्ज करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे एक सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कोई ऐप डाउनलोड नहीं करना है आपको, या मतलब पेमेंट करो, वॉलेट में मेंटेन करो, वो सब झंझट यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे देयर इज़ वन अटेंडेंट, वो ही आपको गन डाल के देगा और सब वही करेगा। और यहाँ पे मतलब यूनिट पे नहीं है, यहाँ पे परसेंटेज, कितना परसेंटेज आपका गाड़ी चार्ज होता है वो हिसाब से है। अभी हम जहाँ पे चार्जिंग के लिए रुके हैं ना, वो जिसका चार्जिंग है, जो ओनर है, अंकल एक हैं, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने हमारा गाड़ी देखा ना, टाटा हैरियर का ईवी, तो उनको इतना पसंद आया गाड़ी। उन्होंने मतलब अभी तक ये जो हैरियर है ना, वो टाटा वालों ने यहाँ पे नेपाल में लॉन्च नहीं किया है, मतलब ईवी नहीं, डीजल वर्जन भी यहाँ पे नहीं आया है, लेकिन अभी वो लोग आने वाला है। और वो अंकल है ना, उनका टाटा का एजेंसी है, तो वो उन्होंने पूरा हमारा गाड़ी अभी चेकआउट किया, अभी भी अंदर से सब चेक कर रहे हैं। और मतलब पूरा उन्होंने वीडियो भी लिया उसका, एंड ही लाइक्ड इट सो मच। कलर भी उनको बहुत पसंद आया। इनफैक्ट सच्ची में हम लोग को भी जो हमने चूज़ किया ना ये हैरियर, और इसका जो ग्रे कलर है, लाइक इंग्लिश ग्रे कलर, उसके वजह से ये गाड़ी बहुत स्टनिंग लगती है। तो हम लोग को भी लाइक और भी जितनी भी देखेंगे तो हम लोग को ऐसे ही लगता है, नहीं हमारी कार ही बेस्ट है। हाय गाइस, अभी हम लोग निकले हैं ऐसे ही स्ट्रोल के लिए लुम्बिनी में हमारे होटल से। एक्चुअली जो मेन घूमना है माया देवी कॉम्प्लेक्स, तो वो तो हम लोग शाम को करने वाले हैं, लेकिन हमने सोचा कि थोड़ा सा आसपास आपको थोड़ा सा दिखा दे लुम्बिनी शहर कैसा है। तो मैं अभी आपको वीडियो शूट करके दिखाती हूँ। तो दिस इज आवर होटल पीसलैंड लुम्बिनी, और उनका ये रेस्टोरेंट है कुदन रेस्टोरेंट। और ये जो पूरा रोड है ना, यही मेन रोड है यहाँ पे। और ये जो एडजेसेंट, लाइक दिस रोड रन्स पैरेलल टू द माया देवी टेम्पल कॉम्प्लेक्स, and all the hotels are here only, like on this road only, or if you go inside the lanes पीछे के side, there are a few hotels there as well. And like from like the distance of 300 meters there is the main entry of the Maya Devi temple complex. So now we have walked a little further and we have come to the opposite side, and this is the gate of the Maya Devi temple. There are various gates from which you can enter, but from here it is the Maya Devi temple is the closest, and there are, like each gate has been given a number as such. And here outside you can see the layout plan of the entire complex. On the green circle that you can see on the right hand side, that is the Maya Devi temple, and towards the right you can see is the Peace Pagoda, and in the center these are in the center, all these are the monastic zones, east and west, where there are several different monasteries. And this is the Greater Lumbini Buddhist Circle, so all the places which are a part of it is shown in this map. And this is again the master plan of the entire complex here. And see the Buddha statues, standing Buddha statues look really stunning. गाइस अभी हम लोग निकले हैं साइट सीइंग के लिए। तो ये फर्स्ट स्टॉप हमारा है लुम्बिनी का वर्ल्ड पीस पगोड़ा। यहाँ पे आप अपना व्हीकल लेके जा सकते हैं, और यहाँ पे कोई व्हीकल के लिए कोई एंट्री टिकट नहीं लगता है। ये देखिए पगोड़ा का लॉन कितना ब्यूटीफुल है, और यहाँ पे एक पॉन्ड है, लोटस पॉन्ड,
इतने सारे लोटस हैं यहाँ पे, पूरा भर के लोटस है। और ये एकदम परफेक्टली मैनिक्योर्ड लॉन है, सो दे हैव मेंटेन्ड वेरी वेल। यहाँ से एंट्री है पीस पगोड़ा का। आप देख सकते हैं कितना ग्रीनरी है यहाँ पे। दिस एंटायर कॉम्प्लेक्स इज लाइक सराउंडेड विथ ऑल ग्रीन ट्रीज। So guys, this is the view from the entrance of the pagoda. Very beautiful view, greenery all around. And as you go up the steps, you get a close-up view of the Buddha. This is the standing Buddha. Again, from the first floor, I'm showing you the view of the complex that we can see from here. Now this is the sleeping Buddha. So means as you go round this entire pagoda, there are 4 different positions of the Buddha that you can see. Now this is the sitting Buddha, like sitting on that 1000 lotus petals. Very beautiful idol this is. पीस पगोड़ा से निकले हैं और उसके सामने ही एग्जैक्टली गेट नंबर 1 है। और ये गेट नंबर 1 से आपको आपके प्राइवेट गाड़ी अगर आपको अंदर लेनी है तो आपको टिकट निकालना पड़ता है, टिकट कटाना पड़ता है यहाँ से। और जो माया देवी टेम्पल है ना कॉम्प्लेक्स, उसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट, प्राइवेट गाड़ी के लिए टिकट निकालना पड़ता है। तो वो यहाँ पे एक टिकट काउंटर है। गेट नंबर 1 से आप अंदर आएंगे ना तो राइट हैंड साइड पे है। और यहाँ पे इंडियन रुपीस 250 में और नेपाली 400 रुपीस लगता है पर डे का। अब हमने गेट नंबर 3 से एंट्री किया है। आप लोग गेट नंबर 4, 5 से भी एंट्री कर सकते हो और पीछे साइड गेट 9 और 10 है, वहाँ से भी एंट्री कर सकते हो। अभी मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जो है ना वो सब ईस्ट मोनेस्ट्रीज होंगी, सामने साइड वेस्ट, और एकदम एंड में जो है वो माया देवी टेम्पल है। जैसे जैसे हम लोग जाएंगे मैं आपको बताती रहूँगी और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करती रहूँगी। ये है रॉयल थाई मोनेस्ट्री, द रॉयल थाई मोनेस्ट्री। अनफॉर्चुनेटली ये हुआ कि हमको बोला गया था ये 6 बजे बंद होगा, तो हम लोग 5 बजे एग्जैक्ट आ गए हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट 5 o'clock टाइम लिखा है, अभी 5 बजने में थोड़ी देर है, लेकिन वो एंट्री नहीं दे रहा है हमको। अभी जो थाई मोनेस्ट्री क्लोज था, लेकिन उसके बाजू में ही कंबोडियन मोनेस्ट्री है। यहाँ पे बहुत सारी हैं, लाइक ईस्ट जोन है और वेस्ट जोन है। तो ये ईस्ट जोन में 5 नंबर पे ये है कंबोडियन मोनेस्ट्री। देखो क्लोजअप व्यू मोनेस्ट्री का। मोनेस्ट्री का एंट्रेंस। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। And see these windows and
guys, I'm showing you the close-up. ये अभी हमारा थर्ड स्टॉप है जो है लोकमनी फूला पगोड़ा। ये सब जो कॉम्प्लेक्स है ना उसके अंदर ही है। इसी के बगल में ये है इंटरनेशनल गौतमी नन टेम्पल। ये जो गौतमी नन टेम्पल है उसके अंदर का वीडियो है। आपके पास आपका प्राइवेट व्हीकल नहीं है तो ये टुक टुक आपको लेके जाएगा सब जगह अंदर। दे चार्ज अराउंड 1000 नेपाली रुपी फॉर 2.5 to 3 hour टूर एंड शो यू द एंटायर कॉम्प्लेक्स। ये जो माया देवी कॉम्प्लेक्स है उसमें बहुत सारे मैंगो के झाड़ हैं, आप देख सकते हो पूरा झाड़ लदा हुआ है मैंगोज से। कितने सारे मैंगोज हैं इसके अंदर, देखिए। ये भी देखिए। पहले मैं कार में से वीडियो ले रही थी, फिर मैंने सोचा उतर के आपको एकदम क्लोजअप में दिखा दूँ। इतना मज़ा आ रहा है ये मैंगो देख के। सो दिस इज द लुम्बिनी वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी विजिटर्स सेंटर। This is the eternal peace lamp and there's a water body here, and far away there you can see the world peace pagoda. I will zoom so that you can have a, it's very far, but that white thing that you can see is the world peace pagoda. Now this is the entry complex of the Maya Devi temple. The entire video, everything that I've shown you is a part of this complex itself, the Maya Devi temple complex. Everything is inside only. This is the Bodhisattva Siddhartha. My dear viewers, can you see it's such a beautiful sight? The setting sun looks so beautiful from behind the trees. You know, when we were traveling all these days, every day we saw the rising and the setting sun. That was really good. Now this is the most important or the most significant part of this entire complex, which is the Maya Devi temple. I will be able to show you only from the outside because the phone is not allowed inside. But here means this is the exact place where Lord Buddha was born, and they have kept a marker stone on the place where the birth exactly took place. This is the back side of the temple. यहाँ से हम लोग ने exit किया. It was means we feel ourselves blessed to have look at that marker stone, the exact place where Lord Buddha was born. And you can actually experience the incredible silence here. You know, this place has an atmosphere or a vibe which is very conducive
for spiritual growth is what I feel, or is what I experienced. Like our mind becomes so calm here. These are the ruins of the old temple which they have kept here, and even inside the temple you would see them. Here people sit and meditate. You can actually, means, even the people who can't sit and meditate or can't calm their mind, I am definitely sure that they can do it here.